Now we'll start the new one, bond angle. So bond angle जो है हमारे पास फॉर्म होता है between the two atoms or two orbitals containing the bonding electrons. So it is defined as the angle between the orbital containing bonding electron pairs around the central atoms in a molecules. Example है हम लोग like water molecules, water H2O, bond angle between HOH equal to 104.5. Actually this is the sp3 hybridized, sp3 hybridized bond angle जो होता है यहाँ पे पास sp3 hybridized होता है. So actually we'll see the structures. तो हमारे पास जो एंगल फॉर्म होता है between the orbitals containing two bonding electron pairs. These are the bonding electron pairs, hydrogen and hydrogen. These are the two bonding electron pairs around the central atom. This central atom in the molecules are complex ions. So this is the oxygen is the central atoms. उसके आसपास आपके पास टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दो के आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सो इसके पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपके पास 104.5 डिग्री. एक्चुअली इट इज sp3 hybridized oxygen atoms. Due to the presence of two lone pair of electron, bond angle is bond angle destructs and bond angle decreases to 104.5. सो ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपके पास होगा 104.5. एक्चुअली ये जो आपके पास ऑक्सीजन है sp3 हाइड्राइजेशन होता है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो sp3 हाइड्राइज कार्बन एटम होते हैं उसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री एंड जियोमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है. So due to the presence of two unshared pair of electron, two lone pair of electron on oxygen atoms, bond angle जो होगा डिस्टर्ब होगा and it will show bond angle तो डिस्टर्ब होगा as well as इसकी ज्योमेट्री भी डिस्टर्ब होगी. बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा 104.5 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ज्योमेट्री जो होगी वो आपके पास बेंड हो जाएगी. सो ये आपके पास जो है बॉन्ड एंगल है. ये जो आपके पास जो है some idea regarding the distribution of orbitals around the central atoms in a molecules. And ये जो है it is also bond angle also help in determining the shape of molecules or complex ions. We'll discuss later in presence of lone pair of electron and bond pair of electron according to Vesper theory. We'll discuss later. Now next one is bond enthalpy. So bond enthalpy means same it is जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, इट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी. So the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. So जैसे आप लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी या लेटेस्ट एंथैल्पी में देखा था किलो जूल मोल इनवर्स होती है. सो यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑल्सो बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो सेम इट इज होगी, इज किलो जूल मोल इनवर्स. दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी. यदि हम लोग एग्जांपल लें कि आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें हम लोग. सो जो हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एंथैल्पी of hydrogen molecule is 435.8 kilojoule mole inverse. दिस द मॉलिक्यूल इतना होता है. सो यहाँ पर आपके पास H2 molecules in a gaseous state. when you want to split up, so you'll require this much amount of energy, 435.8 kilojoule mole inverse energy is required to separate out hydrogen molecule plus hydrogen molecule.
सो यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी है, यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे, इक्वल टू 435.8 किलोजूल मोल इनवर्स. This energy is required. So other molecules also similar, the bond enthalpy of molecules containing, similarly the bond enthalpy so we'll take many examples. Similarly the bond enthalpy for molecules containing multiple bonds, like हम लोग बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें, सो हम लोग एग्जाम्पल लें. Similarly the bond enthalpy for molecule containing multiple bond, जैसे एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो हियर ऑक्सीजन कंटेंट 2, यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड था ना, ऑक्सीजन के पास आपके पास जो है डबल बॉन्ड है, ओ डबल बॉन्ड ओ. देन नाइट्रोजन के पास जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन. सो डेफिनेटली जो आपके पास एनर्जी होगी वो ज्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू, कि फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 435 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रिक्वायर हो रही है, तो डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड ब्रेक करना है, सो डेफिनेटली विल रिक्वायर मोर एनर्जी. सो नाउ दिस मॉलिक्यूल्स इज स्प्लिट अप, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन. सो यहां पर जो एनर्जी होगी, बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी आपके पास, वो होगी आपके पास 498 किलो जूल मोल इनवर्स. 498 किलो जूल मोल इनवर्स. इसकी हाइड्रोजन की 435 थी, देन हियर आपके पास जो है 498 किलो जूल मोल इनवर्स है. सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करें हम लोग, सो नाइट्रोजन भी आपके पास स्प्लिट होगा ना गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो N प्लस Ng. सो यहां भी आपके पास जो एनर्जी होगी वो आपके पास होगी 946 किलो जूल मोल इनवर्स. तो आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट लार्जर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी वही होगी, the minimum amount of energy which is required to break the bond is known as bond dissociation energy. There is another way, the energy, minimum amount of energy which is required to dissociate the bond are known as bond dissociation energy. So it is important that know that larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecules. जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. सो हम लोग बात करें इंटरनल हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो यहाँ पर सिमिलर टर्म्स थे, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड्स की बात करें, सो वहां पर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो होगी आपके पास वो लेस होगी एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स. और सिमिलरली इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. वहां पर आपके पास जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा आइटम्स होते हैं, तो मेजरमेंट जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. लाइक हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, so enthalpy need to break the two oxygen hydrogen bond is not the same, क्योंकि दोनों के लिए बॉन्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके पास डिफरेंट बॉन्ड लेंथ जो दी है, आपके पास कोवेलेंट लेंथ दी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है 96 पिकोमीटर्स होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है 107 होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो होती है आपके पास 120 पिकोमीटर्स होती है, कार्बन नाइट्रोजन की होती है आपके पास 116 होती है. दिस आर द बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ की बात करें तो टू हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है, क्लोरीन की हम लोगों ने देखा था आपके पास 99 पिकोमीटर से. टोटल आपके पास जो है वो आपके पास 198 पिकोमीटर है क्लोरीन की. हाइड्रोजन क्लोराइड के देखें तो आपके पास 127 पिकोमीटर है. सो हम लोग बात करें इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स, सो मेजरमेंट जो होता है आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. लाइक एग्जाम्पल जो दिया बुक में वो दिया आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स. सो द एंथैल्पी नीड टू ब्रेक द टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. जो आपके पास एनर्जी रिक्वायर होगी वो आपके पास सेम नहीं होगी, इट इज डिफरेंट एनर्जी विच रिक्वायर टू सेपरेट आउट टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड और ब्रेक द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड. सो हियर आई हैव written some bond length, covalent bond radius as well as. So hydrogen oxygen की bond length 96 है,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है। कार्बन कार्बन के बीच में 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ 121, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास 120, कार्बन हाइड्रोजन के पास 107 होता है। देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास 133 पिकोमीटर्स, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड ग्रुप्स के पास 116 होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के बीच 143 पिकोमीटर्स होता है। सेम इट इज मॉलिक्यूल्स विथ बॉन्ड एंथैल्पीज, हियर इज सम मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड लेंथ है। लाइक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बीच में आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है, हियर इज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सो इसके लिए आपके पास एनर्जी होगी 54, बॉन्ड लेंथ जो होगी 74 पिकोमीटर। फ्लोरीन एटम है, दिस आल्सो कंटेन सिंगल बॉन्ड, सो हियर इज 144 पिकोमीटर्स। लाइक हम लोग बात करें नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन के पास जो होगी एन ट्रिपल बॉन्ड एन, बॉन्ड लेंथ जो होगी 109 पिकोमीटर। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 121 पिकोमीटर। देन हाइड्रोजन क्लोराइड्स की बात करें तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है आपके पास 127 पिकोमीटर। हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें, हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास होती है 160 पिकोमीटर। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो वो होती है आपके पास 141 पिकोमीटर। एंड आयोडीन की बात करें, सो आयोडीन जो होता है सबसे नीचे होता है 267 इन द ग्रुप। सो दीज आर द bond length between the two molecules and maybe heteronuclear diatomic molecules as well as homonuclear diatomic molecules.